آج آیت الکرسی کا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے آیت الکرسی کو کتنی زیادہ شان عطا فرمائی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور ایک ملک سے نہیں، دنیا کے ہر کونے سے مسلمان جو صاحب استطاعت ہوتا ہے خواہش رکھتا ہے میں حج کروں، لیکن خوش نصیب لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ کورونا سے پہلے تقریباً 35 لاکھ کا بتایا جاتا تھا کہ اتنے حاجی حج کرتے ہیں۔ 35 لاکھ بڑے خوش نصیب ہیں۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے، صفا مروہ کی سعی کرنے والے، حجر اسود کو چومنے والے، اور اس کے بعد میدان عرفات میں جا کے ٹھہرنے والے، ان کی خوش قسمتی کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک ایک حاجی عظمت والا، شان والا، لیکن ان حاجیوں کے اجتماع میں اگر کوئی فرشتہ یہ اعلان کر دے کہ سارے حاجیوں کا فلاں ایک آدمی یہ سب کا سردار ہے، بتائیے اس آدمی کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ عام لوگوں سے حاجی افضل ہو گئے اس وقت کے حج کرنے والے۔ ان پاکیزہ اور خوش نصیب حاجیوں میں سے ایک سردار افضل ہو گیا، جسے سرداری ملی وہ افضل ہوتا ہے۔ بغیر کسی تشبیہ کے اللہ کے قرآن کی ہر آیت شان والی، عظمت والی، مقام والی، برکت والی، اونچے رتبے والی، لیکن فرمایا آقا کریم نے، اللہ کریم نے سارے قرآن کی آیتوں کی سرداری آیت الکرسی کو عطا فرما دی۔ یہ کتنی شان والی آیت ہے کہ قرآن کی آیتیں توجہ طلب بات ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار نہیں اور کوئی ہمارا اردو عربی ادب نہیں، اللہ کا پاک کلام جو کائنات کے کلاموں سے اونچا ہے، اس کلام کی بھی سرداری ملی ہے تو اللہ کریم نے آیت الکرسی کو عطا فرمائی۔ اور یہ قرآن کریم کی سردار آیت بھی ہے، قرآن کریم کی عظیم آیت بھی ہے۔ آقا کریم کے صحابی، آپ نے پوچھا بتائیے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ صحابہ کی یہ عادت تھی، آقا پوچھتے تو یہی جواب دیتے، دوبارہ آقا پوچھتے تو پھر وہ عرض کرتے۔ تو آقا نے دوبارہ پوچھا بتائیے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ کہا یا رسول اللہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آقا یہ آیت افضل ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، واقعی اللہ نے آیت الکرسی کو فضیلت عطا فرما دی۔ آیت الکرسی شان والی، فضیلت والی، عظمت والی، ہمیں چاہیے آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے۔ صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے اللہ کریم کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ علماء نے اس کے حروف کو گنا اور حدیث مصطفیٰ کو سامنے رکھا، فرمایا جو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ کریم 1700 سے زیادہ نیکیاں عطا فرماتا۔ ایک مرتبہ دیر کتنی لگتی ہے؟ آدھا گھنٹہ لگا، 20 منٹ لگے، 15 منٹ لگے،
10 मिनट लगे, कितनी देर लगी आयतुल कुर्सी पढ़ने को? मैंने घड़ी देख के पढ़ा, चूंकि एक जगह बयान करना था, मैंने कहा देखूं तो सही कितनी देर में पढ़ी जाती है। यकीन जानिए 14 सेकंड में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है। तो आयतुल कुर्सी देखिए कितनी फजीलत वाली, जैसे बाकी कुरान के हरफ पढ़े, आयतुल कुर्सी के हरफ पढ़ने से भी अल्लाह एक एक हरफ पे 10-10 नेकियां अता फरमाता। ये तो बाकी कुरान भी था। आयतुल कुर्सी बाकी कुरान के मुताबिक 1700 से ज्यादा नेकियां मिली, लेकिन ये सरदार आयत है, ये अजीम आयत है। अल्लाह अकबर, इसका सवाब भी ज्यादा है। आका के सहाबी खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, आका की बारगाह में एक आया, आम आदमी, नादार, पास कुछ नहीं, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं। आका ने सवाल किया, शादी की है? तुम्हारी हालत से महसूस हो रहा कि कमजोर हालत है, लिबास वगैरह भी परा गंदा। या रसूल अल्लाह, पास कुछ ही नहीं, न घर बार है, न माल है, आका क्या कर सकता हूं? आका ने दिल जोई के लिए कहा, बता तुझे सूरह इखलास आती है? कुल हुवल्लाहु अहद, जी या रसूल अल्लाह आती है। आका ने फरमाया, तू एक मर्तबा इखलास पढ़ेगा, अल्लाह चौथाई कुरान का सवाब अता करेगा। इसी हदीस में आगे आका ने फरमाया, फुला सूरत आती है? जी या रसूल अल्लाह आती। फुला आयत आती है? जी आती। आका ने पूछा, बता आयतुल कुर्सी भी आती है? जी या रसूल अल्लाह आयतुल कुर्सी आती। आका ने फरमाया, मुबारक हो जो एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह उसे भी चौथाई कुरान का सवाब अता करेगा। तो आयतुल कुर्सी देखिए कितनी फजीलत वाली है। हम एक एक मर्तबा पढ़ते हैं, अल्लाह करीम सवाब के खजाने हमें अता फरमा देता। और आगे चलिए, आयतुल कुर्सी की फजीलत, आयतुल कुर्सी का मुकाम और आयतुल कुर्सी की अहमियत इतनी ज्यादा है। रात को हम सोते हैं, वैसे भी आप जानते हैं ना, ईमान वाले के पीछे शयातीन, जिन्नात, चीजें ये हमला करती, ताक में रहती हैं। शैतान ने तो सामने कहा था ना, ऐ अल्लाह तूने मुझे निकाल तो दिया, लेकिन जब तक तेरे बंदों के जिस्म में जान है मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, गुमराह करता रहूंगा, फिसलाता रहूंगा। तो रात तो इंसान सो जाता, उन चीजों को मौका मिलता है हमला करें। जो कमजोर हालत में होता है उस पे असरात भी आ जाते हैं। लेकिन आइए, एक हिफाजत का निजाम अल्लाह के महबूब ने हमें बताया। आका ने फरमाया, मेरी उम्मत याद रखना, जो रात सोने से पहले एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा, अल्लाह करीम सारी रात उसकी हिफाजत फरमा देगा। सारी रात कैसे हिफाजत? तो पढ़ ली, हिफाजत हो गई? ना ना, अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाता है, एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाता है जो उस आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के सराहने खड़ा हो जाता है। बंदा तो सोया रहा, लेकिन आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले, तू कितना खुश नसीब है, रात तूने आयतुल कुर्सी पढ़ी, तू तो सो गया, लेकिन अल्लाह का फरिश्ता सारी रात तेरी हिफाजत करता रहा। तो हमें चाहिए अपने बच्चों को, फी जमाना शिकायत मिलती है, ऐसा हो गया, फुला हो गया, आदत बनानी चाहिए। रात सोने से पहले घर का हर फर्द आयतुल कुर्सी पढ़ के सोए। आयतुल कुर्सी की इतनी शान, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए,
ये बल्ब ट्यूब लाइटें लगी है ना, इनकी रोशनी अंदर है, बाहर सेहन में लगी, उनकी रोशनी सेहन में। हमारे घरों में भी लगी होती, उनकी रोशनी जहां लगे होंगे वहां तक रोशनी, ज्यादा बाहर नहीं जाती। लेकिन एक स्ट्रीट लाइट होती जो खंबे पे लगी होती ऊंची, उसकी रोशनी करीब के घरों में भी आ जाती। दाएं बाएं हमसाए जो होते हैं, बगैर किसी के मांगे खुद ब खुद उसकी रोशनी घरों पे आ जाती, चांदनी हो जाती, रोशनी हो जाती। हालांकि घर वालों ने मांगी नहीं, लेकिन उसकी रोशनी है ही इतनी ज्यादा कि वो रुकती नहीं, खुद ब खुद चली जाती है। आइए अब मुस्तफा की हदीस सुनिए। फरमाया, जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, कसरत के साथ पढ़ी जाती है, वो घर तो वो रहा, अल्लाह हमसायों की हिफाजत भी फरमा लेता। आयतुल कुर्सी इस घर ने पढ़ी, उसकी हिफाजत तो होनी ही है, साथ दाएं बाएं जो हमसाए होते हैं, आयतुल कुर्सी की बरकतें उन्हें भी पहुंच जाती हैं। तो फरमाया, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो। जितना ज्यादा पढ़ोगे अल्लाह करीम उतना ज्यादा इनामात अता फरमाएगा। एक बयान करते हैं, मैंने रात ख्वाब में अजीब मंजर देखा। हजरत अब्दुल्ला बयान करते, कहते मैंने देखा कि कयामत कायम हो गई और कयामत का बड़ा खौफनाक मंजर है। मुझे हिसाब के लिए पेश किया गया कि भाई हिसाब दो। अल्लाह का शुक्र, मेरा हिसाब आसान हो गया। अब फरिश्ते मुझे लेके जन्नत की तरफ जा रहे। जब जन्नत में पहुंचा, मैंने दाएं बाएं महल्लात देखे, जन्नत की नेमतें देखी, मैं तो हैरान रह गया। ऐसी आलीशान जन्नत। एक महल के करीब जाके फरिश्तों ने कहा, ऐ अब्दुल्ला, इस महल के कमरे गिनो। मैंने कमरे गिने, 1 2 3 4, तो कमरे 50 थे। उन्होंने कहा, इन कमरों दरवाजों के आगे और भी कमरे हैं। दरवाजे खोले, मैंने गिने तो और बेशुमार कमरे। मैं गिनता गया, 170 से ज्यादा वो कमरे बने हुए, 50 दरवाजे, उन दरवाजों के आगे कमरे। बड़ा कोई अजीब महल। कहते मैंने ये गिने, मेरी आंख खुल गई। सुबह में इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाबों की ताबीर बयान करने वाले, उनके पास चला गया। मैंने कहा, जनाब मैंने ये ख्वाब देखा है, मेरा हिसाबो किताब आसान हो गया। उसके बाद मुझे फरिश्तों ने कहा गिनो, मैंने 50 दरवाजे गिने। फरिश्तों ने कहा कमरे गिनो, मैंने 50 कमरे, 170 कमरे गिने। समझ नहीं आई ये क्या इनाम मुझे मिला। उन्होंने कहा, मुबारक हो, तू आयतुल कुर्सी ज्यादा पढ़ता है ना। उन्होंने कहा, जी हाँ मैं पढ़ता तो हूं, लेकिन किसी को बताया नहीं। फरमाया, तू बता या ना बता, अल्लाह करीम ने आयतुल कुर्सी का इनाम तुझे ख्वाब में दिखा दिया। तो तो आयतुल कुर्सी खुद पढ़िए, अपने बच्चों को कहिए। बुजुर्गान ने दीन ने फरमाया, घर से निकलते हैं नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, मुलाजमत के लिए, काम काज के लिए, हमें चाहिए घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हिफाजत फरमाएगा। और फरमाया, घर के जो अफराद, हमारी अहलिया, हमारे बच्चे, उन्हें भी कहे कि मैं जा रहा हूं, आयतुल कुर्सी पढ़ दे। बुजुर्गों ने फरमाया, जिस तरह धूप में आदमी छतरी लेके चलता है, धूप से बच जाता है,
जब बच्चे आयतुल कुर्सी पढ़ देंगे इंशाअल्लाह जमाने की धूप से बचता चला जाएगा। तो आयतुल कुर्सी फायदे वाली, आयतुल कुर्सी अजमत वाली, आयतुल कुर्सी बरकत वाली, हमारी हिफाजत वाली। एक हदीस के लफ्ज हैं, उससे पहले मैं ये बात वाजे करूं, आम तौर पे हमें कोई चीज मिले ना तो ठीक है जी, मिली, पानी पिया, कोई और चीज हो गई, लेकिन जब कोई खास मौका आ जाए या कोई खास तोहफा मिले तो आदमी मुस्कुरा देता है। हमारे वालिद साहब हमें कुछ अता करें, बेटा ये लो नई गाड़ी आपके लिए, तो कितनी खुशी होगी। और नई गाड़ी जब किसी को बताएंगे मेरे अब्बा ने मुझे ये नई गाड़ी तोहफा दी, बताएंगे, साथ चेहरे पे खुशी भी आ जाएगी। बड़ा तोहफा मिले तो चेहरे पे खुशी आती है। आइए मोहब्बत से सुनिएगा, आका करीम जब भी सूरह फातिहा की तिलावत करते और आयतुल कुर्सी की तिलावत करते, आका के चेहरे पे खुशी आ जाती, मुस्कुराहट आ जाती, आका खुश होते, मुस्कुराते। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप मुस्कुरा रहे, आका फरमाते सहाबा ये आयतुल कुर्सी और फातिहा मामूली बात नहीं, रहमान के अर्श के नीचे जो खास खजाना है ना, उस खजाने का ये तोहफा है जो पूरी कायनात में अल्लाह ने सिर्फ मुझे अता फरमाया। तो हम कितनी किस्मत वाले, अल्लाह ने वो खास तोहफा अपने महबूब को अता फरमाया। महबूब का सदका अल्लाह ने वो तोहफा हमें भी अता फरमा दिया। तो आयतुल कुर्सी पिछली उम्मतों को न मिली, आयतुल कुर्सी रहमान के अर्श के नीचे खास खजाने का तोहफा है। जो इसकी कदर कर लेता है अल्लाह करीम दोनों जहानों में बेड़ा पार कर देता। एक आदमी आया, आके अर्ज की या रसूलल्लाह गरीब हूं, नादार हूं। आका ने फौरन कहा आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। वो चले गए, आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह करीम ने देखते ही देखते बरकतें अता फरमाई। आयतुल कुर्सी के बड़े फायदे, सिर्फ हिफाजत नहीं, बरकतों का नजूल, आयतुल कुर्सी से रहमतों का नजूल, आयतुल कुर्सी के हमसायों का फायदा, आयतुल कुर्सी से हिफाजत मिलती, आयतुल कुर्सी से सारी रात फरिश्ते की संगत मिलती है। और तो और आयतुल कुर्सी पढ़ लो, अल्लाह करीम जन्नत भी अता फरमाता। आखिर में जो हदीस पाक अर्ज करने लगा, ये याद रखने वाली माशाअल्लाह हमारे आइम्मा किराम आयतुल कुर्सी पढ़ते। आज भी अल्लामा रफाकत साहब ने इशा की कितनी खूबसूरत नमाज करवाई, मैंने भी पीछे पढ़ी, सादत मिली। मैं सुन रहा था, दुआ से पहले उन्होंने भी आयतुल कुर्सी पढ़ी। तो आयतुल कुर्सी नमाज के बाद आदत बनाइए। बुखारी शरीफ के लफ्ज हैं, आका करीम ने फरमाया ऐ मेरे उम्मती जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेता, ज्यादा देर नहीं लगती, कोई लंबा वजीफा नहीं, मैंने कहा 14 सेकंड में पढ़ी जाती। आका ने फरमाया मेरा जो उम्मती हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, जन्नत और उसके दरमियान सिवाय एक रुकावट के अल्लाह करीम हर रुकावट को दूर कर देता। सारी रुकावटें दूर हो गई। किसने की? आयतुल कुर्सी ने की। लेकिन याद रखिए कोई एक आधी रुकावट नहीं, बंदे और जन्नत के दरमियान बड़ी रुकावटें, ऊंची ऊंची रुकावटें। यहां तक आया कि ऐ बंदे एक मर्तबा तू गुनाहे कबीरा करता है, तेरे और जन्नत के दरमियान रुकावट बन जाता। तो कितनी न जाने हर इंसान की, किसी की 100, किसी की 500, किसी की 1000,
किसी की 10,000 रुकावटें होंगी जन्नत जाने तक, लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह ने कितना करम फरमाया। फरमाया हर नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लो, एक रुकावट के अलावा सारी रुकावटें दूर हो गई। या रसूल अल्लाह, आयतुल कुर्सी पढ़ने से हर रुकावट दूर हो गई, वो एक रुकावट कौन सी है हमें भी बता दीजिए। आका ने फरमाया वो रुकावट तुम्हारी अपनी मौत है, तुम्हारी मौत आएगी, आयतुल कुर्सी का सदका अल्लाह सीधा जन्नत अता फरमा दे। तो अंदाजा लगाइए, पता चला आयतुल कुर्सी ने हर चीज को दूर कर दिया। रुकावट अब किसी और वजह से नहीं, मजबूरी है, हमारी अपनी जिंदगी रुकावट है। जो ही आंखें बंद होंगी आयतुल कुर्सी का सदका जन्नत के नजारे मिल जाएंगे। अब एक और ज़िमन में इशारा भी है, वो भी बड़ा तवज्जो तलब है। भाई जन्नत किसे मिलेगी? जन्नत किसको मिलेगी? जिसका खात्मा ईमान पर हुआ होगा। जिसका खात्मा ईमान पर ही नहीं, उसे जन्नत कभी भी नहीं मिलेगी। जन्नत उसे मिलेगी जो मोमिन हालत में मरा हो, कलमे की हालत में मरा हो। पता चला प्यारे आका बताना चाहते मेरे उम्मती, तू आयतुल कुर्सी पढ़ ले, ये आयतुल कुर्सी आखिरी वक्त कलमा भी नसीब करेगी, तुझे जन्नत भी अता कर दे। तो आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे। फी जमाना हमें ज्यादा जरूरत है। मैंने ये बयान किए, हमारे एक हाजी साहब हैं, इधर उनकी छोटी सी फैक्ट्री है, वो बताते मैंने आपका बयान सुना, अब आयतुल कुर्सी पढ़ता रहता। कहते मैं अपनी दुकान के तालों पे बंद करते वक्त आयतुल कुर्सी की मेरी आदत थी, पढ़ पढ़ के मैं फूंक लगा के जाता। चूंकि उनकी कुछ अरसा पहले दुकान पे फैक्ट्री पे चोरी हो गई, चोर वो छत से आए, सुराख करके आए और कितना सामान उठा के ले गए, परेशान रहे। उसके बाद इनकी आदत बन गई आयतुल कुर्सी आयतुल कुर्सी। कहते हैं अभी पिछले दिनों वो बताते हैं रात में जल्दी चला गया किसी काम की वजह से, तो कारीगर दुकान के कुछ ताले लगाना भूल गए। दुकान आधी बंद और आधी तकरीबन खुली रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ दी थी। सारी रात मेरी दुकान के कुछ ताले खुले रहे। सुबह आया तो अल्लाह ने हर तरह की हिफाजत फरमाई थी। तो ये आयतुल कुर्सी की बरकतें। फी जमाना चोरी का डर बढ़ गया। आप देखिए जगह जगह चोरी, मोबाइल चोरी, दुकानों पे चोरी, घरों पे चोरी, माल की चोरी। इंसान डरता है, पैसे लेके जाता हुआ हालात नाजुक आ गए। आज ज्यादा जरूरत है आयतुल कुर्सी की तिलावत करें, सुबह शाम करें, इंशाअल्लाह आप देखेंगे आयतुल कुर्सी का सदका अल्लाह करीम हर तरह की हिफाजत फरमाएगा।